गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट पीरियड में हमने देखा था SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन देखा था। SN2 रिएक्शन में क्या देखा था हमने कि वो एक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और SN1 में क्या देखा था? इट इज अ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमने उसकी मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत देखा था हमने। एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज कर देता कि व्हाट इज अ SN2 रिएक्शन। व्हाट इज अ SN2 रिएक्शन क्या होती थी ये? इट इज अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. This clearly indicates that rate of reaction is directly proportional to the concentration of the nucleophile as well as concentration of the reactant. You can say rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant and concentration of nucleophile. Concentration of reactant and concentration of nucleophile. बाद में आपने यहाँ पे इसको हटा के K2 की साइन लगाया था, राइट? इट इज कॉल्ड अ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब आप एग्जांपल देख लीजिए उसकी, फिर हम इसके फैक्टर पे बात करेंगे। ये थी आपकी रिएक्शन CH और यहाँ लिया था आपने H और यहाँ लिख देता हूं मैं Cl and it is reacted with the nucleophile that is called the OH negative hydroxide anion. The nucleophile will be attacked from the back side. कहाँ से अटैक करेगा वो? बैक साइड से अटैक करेगा and there is a formation of the transition state. There is a formation of the transition state. वहाँ पे क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी. In transition state, these three hydrogen atoms are in one plane at the bond angle of 120, and this chlorine, that is as a living group, it will be at the partial bond, right? And this Cl is again a partial bond. ये भी क्या लगेगा यहाँ पे? partial bond ही लगेगा. And this is act as a transition state. क्या है आपकी ये? ये आपकी TS है. In the TS, these three hydrogen atoms are in one plane, and these two partial bonds are perpendicular to this plane. The bond angle of this is 120. ये इन तीनों के H के बीच में bond angle कितनी है? 120 है. And finally, this reaction proceed to use the एक वक्त ऐसा आएगा कि this bond will be completely break and this bond will be completely form, and you will get finally the alcohol. आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्कोहल. इसको आप लिख पाएंगे कैसा? यू कैन राइट CH3OH. ये मिल गया आपको. ये रिएक्शन थी आपकी कौन सी? SN2 रिएक्शन. That is called as a SN2. आपको कल बताया था. It is a concentrated. इसके साइलेंट फीचर्स क्या थे? साइलेंट फीचर्स आर it is a single state mechanism. वो क्या था? एक सिंगल स्टेट मैकेनिज्म था. And the bond breaking, bond formation, both are taking place simultaneously. The reactions are concerted mechanism. This reaction proceed with the concerted mechanism. Mechanism कैसा है उसका? Concerted mechanism है. Bond formation, bond breaking दोनों के दोनों साथ साथ होते हैं. That is called a simultaneous. It proceed via the transition state and nucleophile will be attacked from the back side. ये थी आपकी SN2 reaction. अब फोकस करते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन पे, फिर हम लोग इसके फैक्टर पे बात करेंगे. SN1 रिएक्शन क्या थी बच्चों? SN1 रिएक्शन थी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. तो क्या थी वो? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. राइट? क्या था इसके अंदर? इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म. अब यहाँ पे मैं तीनों H को चेंज करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिथिल. ये भी क्या है? मिथिल. और यहाँ लिखता हूँ मैं दिस इज अ हैलोजन. दैट इज कॉल्ड अ क्लोरीन. दैट इज कॉल्ड अ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड. ये क्या था आपका? इट इज अ मिथिल क्लोराइड. क्या था आपका? ये मिथिल क्लोराइड था. ये क्या हो गया आपका?
tertiary butyl chloride. It is tertiary butyl chloride. Now in this case it is a two-step mechanism. So in the first step first, this bond will be break, because in this case rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. इस पे डिपेंड हो concentration of reactant only, not on the nucleophile. Nucleophile पे डिपेंड नहीं है. No doubt nucleophile is present here, but in the first step this leaving group will be depart while taking its lone pair. वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके यहाँ से डिपार्ट हो जाता, and there is a formation of the planar carbocation. क्या बनेगा यहाँ पे? Formation of the planar carbocation बनेगा, right? And this leaving group will be like negative anion. And in the step 2, in the step second, ये सब हमने देखा हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, right? In the step second, this carbocation, ये है आपका carbocation, right? This is a planar carbocation, and the bond angle of this is 120 degree, exactly same in this case, where the 3 hydrogen are in the one plane. The bond angle is 120 degree. In that case, nucleophile can be attacked from the front side, or nucleophile can be attacked from the back side. Nucleophile कहाँ से अटैक कर सकता था? फ्रंट से भी करता था और बैक से भी करता था. तो यहाँ मिलता था आपको क्या? यहाँ मिलता था आपको रिटेंशन. यहाँ मिलता था आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और यहाँ मिलता था आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. यू गॉट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ये सब कुछ हमने देखा था. अब फोकस करते हैं हम लोग यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द SN1 and SN2 reaction. So we will move for the factors affecting SN1 and SN2 reactions. Factor affecting SN1 and SN2 reaction. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक फैक्टर हमने देखा था, मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता. पहला फैक्टर जो है आपका वो है नेचर ऑफ सबट्रैक्ट. नेचर ऑफ सबट्रैक्ट, आपका सबट्रैक्ट का नेचर क्या है? जनरली द प्राइमरी सबट्रैक्ट, दिस इज द प्राइमरी सबट्रैक्ट, यू कैन से मिथिल, दिस इज द मिथिल सबट्रैक्ट. तो जनरली द मिथिल सबट्रैक्ट अंडरगोज SN2 reaction. Why? The reason behind that, it proceed via the transition state, which is pentacoordinate. This case is pentacoordinate. Pentacoordinate. ऐसी है ये pentacoordinate है. तो if the bulky groups are present, if you take a methyl or you can take a secondary or tertiary, then there is a bulkiness will be increases. Bulkiness will be increases. As the bulkiness will be increases, the transition state become more and more unstable, and that's why primary or the methyl subtract undergoes the SN2 mechanism. They proceed under the SN2 mechanism. तो यहाँ पे मैं लिख देता कि primary alkyl halide, or you can say primary subtract, or you can say methyl subtract, methyl alkyl halide. They proceed via SN2 mechanism. ये proceed करते हैं हमेशा SN2 mechanism पे. Why not SN1 reaction? No, reason behind that is, now see, ये है आपकी TS. तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखते हैं TS है आपकी. अब बड़ी सिंपल सी रिएक्शन देखो. TS is what? This is what TS. H, that is H, right? And here is a leaving group, that is Cl, and here is a nucleophile, that is OH, and this is what TS. That is a transition state. क्या है आपकी? ये transition state है यहाँ पे. Now this is a methyl group. This is the methyl group. That is the methyl chloride. ये क्या है आपका? methyl chloride है. Now अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं और यहाँ ले लूं मैं secondary group. Now see, same thing is there. That is Cl, and that is nothing but the OH. ये क्या हो गया आपका? सेकेंडरी है ना. ये मिथिल था, सॉरी ये प्राइमरी हुआ आपका. दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अल्किल हाइलाइट.
ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इस H की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, मिथिल आ गया। तो क्राउड्स क्या हो गया, क्राउड बढ़ गया ना, क्राउड क्या हो गया, बढ़ गया। अब आगे जाऊं मैं, यहाँ पे मैं सेकेंडरी ले लेता हूँ। यहाँ पे इफ आई विल टेक अ सेकेंडरी CH3 और यहाँ ले लिया CH3 इस H की जगह पे, ये H को मैंने वैसे ही लिख दिया, राइट। और यहाँ लिख दिया मैंने दैट इज नथिंग बट द लिविंग ग्रुप क्लोरीन, और यहाँ लिख दिया मैंने न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH दैट इज अ TS, राइट। देखिए तो अब यहाँ पे क्या हो गया, क्राउड और बढ़ गया। तो मैं अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो क्राउड और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे ये H को आप रिप्लेस करेंगे मिथिल ग्रुप से, इनडायरेक्टली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग अ मिथिल क्लोराइड। बाद में क्या किया आपने, प्राइमरी अल्किल दिया, बाद में आपने क्या लिया, सेकेंडरी अल्किल दिया, बाद में क्या लिया आपने, टर्शियरी लिया। तो इन टर्शियरी केस क्या होगा, इन टर्शियरी केस में क्या होगा, यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में द बल्कीनेस विल बी इंक्रीजेस एंड दिस TS is pentacoordinate. As the crowding increases, क्या होगा यहाँ पे, क्राउड बढ़ेगा ना। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, और इस तीनों C के पास क्या है, H है। यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ, राइट। और यहाँ है आपका लिविंग ग्रुप और यहाँ है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये TS देखिए कितनी बल्कि हो गई, दिस इज द बल्कि TS। As the TS transition state become bulky, there is a destabilization of the transition state, and that's why it do not proceed with the SN2 mechanism. फिर वो SN2 को फेवर नहीं करती, इसीलिए जनरली the primary or methyl substrate where there is a TS is not so much crowded, they can be easily proceed with the SN2 mechanism. वो आसानी से क्या करेंगे, SN2 mechanism को proceed करेंगे because TS is not crowded. TS क्या है वहाँ पे crowded नहीं है। TS is not crowded means they can easily proceed with the SN2 mechanism, right? SN2 mechanism. अब अगर मैं बात करूँ इसकी रिवर्स बात करूँ, if I am talking about the converse, तो in the converse case SN1 reaction में क्या होता है, SN1 reaction में क्या होता है बच्चों, SN1 reaction में बनता है कार्बोकेटायन, because in SN1 reaction it is a two-step mechanism and there is a formation of the कार्बोकेटायन। तो इन केस ऑफ द SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, कार्बोकेटायन बन रहा है आपके पास, राइट। ये है आपका प्लेनम कार्बोकेटायन वेयर द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कैसी है वहाँ पे, 120 डिग्री है, दैट इज द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री एंड न्यूक्लियोफाइल कैन बी अटैक फ्रॉम ईदर फ्रंट साइड और बैक साइड, दैट गिव्स द रेसिमाइजेशन इन दैट केस, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बोकेटायन है and that carbocation is tertiary carbocation. It is stabilized by the plus side effect. क्या करेगा वो, प्लस साइड इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा वो, it is stabilized by the plus side effect. And the one more thing is that this is a crowded molecule. After departure of the living group, it convert into the planar configuration. When it become a planar configuration, then the crowdness and the bulkiness will be automatically released and the molecule become planar. So all bulky group will be at apart from 120 angle. So they will be easily accommodate. Once they will be easily accommodate, the carbocation will be very stabilized, and that's why they proceed through the SN1 mechanism. They proceed through the SN1 mechanism. There are two factors. One is called the plus I effect, and one more thing is that there is a hyperconjugation जो आप पढ़ के आए हो, hyperconjugation is also called as a no bond resonance. तो hyperconjugation से भी उसको क्या मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा stabilization, क्या मिल जाएगा उसको, वहाँ पे stabilization मिल जाएगा। वहाँ कैसे मिलेगा आपको दिखाता हूँ, how they got the stabilization via the hyperconjugation। अब देखो मैं यहाँ पे CH3, ये CH3 मैं इन दोनों को ओपन नहीं करता, है ना, ये मिथिल जैसा है वैसे ही राइट, मिथिल को क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसे देता। अब क्या होगा, यहाँ पे चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, राइट। जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या कंडीशन जाएगी, ये H जैसा है वैसा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये C जैसा है वैसा, CH3 जैसा है वैसा एज इट इज, और यहाँ पे H मौजूद है ना। इसके कितने बॉन्ड बन गए, इसके बन गए 4 बॉन्ड। देन फाइनली व्हाट विल हैपन, दिस विल बी शिफ्ट हियर एंड दिस अगेन गेट द पॉजिटिव चार्ज, राइट। बाद में ये वाला H आएगा, बाद में ये वाला H आएगा, बाद में यहाँ का H, यहाँ का H, मतलब टोटल यहाँ पे कितने स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है,
9 स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पर, ऐसे 9 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मतलब दे आर गेटिंग अ स्टेबलाइजेशन थ्रू द हेटेरोकॉन्जुगेशन आल्सो, एंड दैट्स व्हाई द टर्शियरी सबट्रैक्ट इजीली अंडरगोज द SN1 मैकेनिज्म। टर्शियरी क्या हो जाएंगे, इजीली अंडरगोज हो जाएंगे किसके, वाया SN1 मैकेनिज्म। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड और मिथिल अल्किल हैलाइड फॉलोज द SN2 मैकेनिज्म, एंड टर्शियरी subtract follows the SN1 mechanism. I'm not talking about the secondary. Secondary may be SN1, it may be SN2. It depend upon the condition. It depend upon the condition of other factors. ठीक है, वो आप आगे बात करते हैं। हम फोकस करेंगे यहाँ पे कहाँ कि मिथिल हुआ अगर आपके पास या प्राइमरी अल्किल हुआ तो हमेशा कौन सी रिएक्शन शो करेगा, SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स आपको बताया मैंने, है ना। और अगर टर्शियरी हुआ तो क्या करेगा, हमेशा वो SN1 रिएक्शन ही शो करेगा। ये था आपका पहला फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ सबट्रैक्ट। तो इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, आपकी बुक में उसने दिया हुआ है ना, आपकी बुक में उसने दिया हुआ है कि इफ यू हैव द मिथिल सबट्रैक्ट, इफ यू हैव द मिथिल, राइट, आपके पास क्या है, मिथिल है, बाद में आपके पास प्राइमरी है, बाद में आपके पास सेकेंडरी है, बाद में क्या है आपके पास टर्शियरी है, राइट, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप इस तरह से जाएंगे, इस साइड, अगर आप इस साइड जाएंगे तो द चांसेस ऑफ द SN1 विल बी इंक्रीजेस, चांसेस ऑफ द SN1 विल बी इंक्रीजेस। और अगर इस साइड आएंगे आप तो द चांसेस ऑफ द SN2 विल बी इंक्रीजेस। तो टुवर्ड दिस साइड इट फॉलोज द SN2 पार्ट, टुवर्ड दिस साइड इट फॉलोज द SN1 पार्ट। कौन सा पार्ट फॉलो करेंगे, SN1 पार्ट फॉलो करेंगे। आई बात समझ में, ये था पहला फैक्टर। दिस इज फर्स्ट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ सबट्रैक्ट। नाउ वी विल मूव फॉर द सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या मूविंग, now we will move for the, sorry for inconvenience, now we will move for the nature of nucleophile. अब nature of nucleophile में क्या होगा, now see this, in case of the SN2 mechanism it is depend upon the two things, one is called as a concentration of reactant, concentration of the nucleophile। nucleophile पे भी depend है rate of reaction, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, because it is directly depend upon the concentration of reactant only। तो in case of the SN2 mechanism, this react in a slow state। तो कौन सी स्टेप में रिएक्ट कर रहा है, स्लो स्टेप में, because in case of the SN2 mechanism it depends on nucleophile, depends on nucleophile। and what is the nucleophile, आप किस nucleophile को strong nucleophile बोलोगे, the nucleophile which are easily able to donate its electron pair, ऐसा nucleophile जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट करेगा, that can be easily available to form a bond with the subtract, that nucleophile is a strong nucleophile। तो क्या होगा, strong nucleophile होगा वो। अब strong nucleophile होगा तो क्या होगा, if the strong nucleophile, it depend upon its nucleophilicity, है ना, strong nucleophile, और you can say nucleophilicity, nucleophilicity ये कब होगी, जब वो इजीली एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा और इजीली बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बॉन्ड कहाँ फॉर्म कर रहा है वो, और स्लो स्टेप में कहाँ रिएक्शन कर रहा है वो, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से यहाँ अटैक करता, यहाँ वो रिएक्शन करता है स्लो स्टेप में, इसीलिए द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। तो इन दिस केस इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, देन न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, इट प्रोसीड वाया द SN2 मैकेनिज्म। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो इनडायरेक्टली कौन सा पाथ फॉलो करेगा, SN2 ही फॉलो करेगा, क्योंकि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। SN1 जो है ना वो क्या है बच्चों, वो इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियोफाइल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं है, बिकॉज
ये स्लो स्टेप है। और इन दिस स्टेज न्यूक्लियोफाइल विल बी रिएक्ट इन द फास्ट स्टेप। न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के बाद ये फास्ट स्टेप है, दिस इज द फास्ट स्टेप। स्टेप कैसी है? ये फास्ट स्टेप है। तो फास्ट स्टेप इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फास्ट स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होती। जो स्लो स्टेप होती है वो क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इसलिए इस केस में वो इंडिपेंडेंट है। तो यू कैन इजीली से दैट कि इफ द न्यूक्लियोफाइल इज हैविंग अ ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द रिएक्शन मीडियम, इट प्रोसीड वाया द SN2 मैकेनिज्म। वो क्या करेगा? SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा, SN1 को फॉलो नहीं करेगा। ग्रेटर द न्यूक्लियोफाइल, बेस्ट द न्यूक्लियोफाइल, मोर इज द रिएक्शन रेट ऑफ द SN2 मैकेनिज्म। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही अच्छा आपका SN2 रिएक्शन का रेट होगा, बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? ये था आपका दूसरा फैक्टर। अब इसमें दो चीजें समझ लीजिए आप, है ना। अब देखिए कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, एसिड बेस आपको पता है ना। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है आपका अल्कोहल CH3OH, यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड है। जब मैं इसकी ब्रेकिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? यहाँ पर आई विल गेट लाइक CH3O पे नेगेटिव एंड H पे पॉजिटिव। हर एसिड का क्या होता? हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है ना। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एनी एसिड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इस कॉन्जुगेट एसिड, है ना। देखो ये कॉन्जुगेट बेस का, कॉन्जुगेट हर एसिड का क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है। तो दिस इज कॉल्ड द एसिड, और ये क्या है आपका? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। तो द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एनी एसिड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन द एसिड। किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो उससे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि CH3O नेगेटिव ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है किसके मुकाबले में? CH3OH के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव से अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के एटम पे, और यहाँ वो लोन पेयर से अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के एटम। आ ये बात समझ में? ये हो गया आपका दूसरा फैक्टर, दैट इज द सेकंड फैक्टर, राइट। तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वन इज नेचर ऑफ सब्सट्रैक्ट, वो आपने देख लिया। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, वो भी आपने देख लिया, राइट। अब बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे बात करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो कितने फैक्टर देखे हम लोगों ने बच्चों? दो फैक्टर फिलहाल देखे हम लोगों ने। पहला फैक्टर कौन सा था? नेचर ऑफ सब्सट्रैक्ट। यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना। नेचर ऑफ सब्सट्रैक्ट, नेचर ऑफ सब्सट्रैक्ट। दूसरा क्या है आपका? नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नाउ थर्ड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट दो टाइप के आपके पास, वो आपको आगे दिखा देता हूं मैं। वन इज द पोर्टिक सॉल्वेंट, वन इज द अपोर्टिक सॉल्वेंट। पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट, पोलर अपोर्टिक सॉल्वेंट, है ना। वो आपको दिखाता हूं यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट। SN2 के पार्ट में क्या होता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। तो SN2 का जो पार्ट है वो उसमें आपके पास होती है एक TS। क्या होती है आपके पास? एक TS होती है। क्या है यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। यहाँ क्या है आपके पास? यहाँ पे आपके पास है न्यूक्लियोफाइल, दिस इज व्हाट TS इन केस ऑफ द SN2 पार्ट। SN1 में क्या होता है आपके पास बच्चों? SN1 में आपके पास होता है कार्बोकेटायन। वो भी कैसा होता है? इट इज अ प्लेनर कार्बोकेटायन, इट इज अ प्लेनर कार्बोकेटायन। तो ये है आपका कार्बोकेटायन, ध्यान से देखना, है ना। ये है कार्बोकेटायन, यहाँ पे मिथिल लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे ये है मिथिल और ये है आपका मिथिल, दैट इज अ प्लेनर कार्बोकेटायन। ये हो गया आपका प्लेनर कार्बोकेटायन। अब सपोज और नॉन सपोज, इफ यू आर हैविंग अ सॉल्वेंट, सपोज ही मत कीजिए, आपके रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्वेंट होता है। इफ यू आर हैविंग अ प्रोटिक सॉल्वेंट, और यू कैन से इफ यू आर हैविंग अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आपके पास सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर प्रोटिक है। व्हाट इज पोलर प्रोटिक? पोल्स होगा वहां, देयर इज अ पोलर डाइपोल मोमेंट इज देयर इन केस ऑफ द सॉल्वेंट, लाइक अ मिथेनॉल, लाइक अ वाटर, है ना। मान लेता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, दैट इज मिथेनॉल, you can say water, this is the polar protic solvent. So that protic solvent will be stabilize this carbocation, this will be stabilize this carbocation, है ना। ये इसमें चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है,
है ना, ये चार्ज कैसा है इसके ऊपर, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इज देयर। अब आपके पास सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है आपके पास HOH, H पॉजिटिव OH पे निगेटिव, वहां पे भी कंडीशन क्या है आपके पास CH3OH, OH पे निगेटिव, इधर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो द निगेटिव एंड ऑफ दिस पोलर मॉलिक्यूल विल बी कम क्लोज टू द पॉजिटिव एंड ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड देयर इज अ स्टेबलाइजेशन, दे गिव्स द सॉल्वेशन, यू कैन से दे गिव्स द सॉल्वेशन, उनका क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए यहाँ पे कि द सॉल्वेशन ऑफ द कार्बोकेटायन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द सॉल्वेशन ऑफ द अनायन। अनायन के केस में ज्यादा अच्छा सॉल्वेशन होता है, इन केस ऑफ द केटायन सॉल्वेशन यहाँ भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन इट इज सॉल्वेटेड बाय द अनायंस, राइट। अब इस केस में देखिए यहाँ पे क्या है, पार्शियल निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, राइट। तो नाउ सी दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज अगेन अ नेगेटिव चार्ज, तो द पॉजिटिव एंड ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी क्लोज टू दिस नेगेटिव एंड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल है बिफोर द अटैक, बिफोर द बैकसाइड अटैक, बैकसाइड अटैक से पहले वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना। तो उस न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव एंड क्या करते हैं, सराउंडेड करते हैं, दे यूज एज द सॉल्वेशन ऑफ दिस, एंड वंस दे आर बी सॉल्वेटेड, वंस दे सॉल्वेटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट, जब ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, सॉल्वेट पूरा कंप्लीटली सॉल्वेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, क्या वो इजीली से अटैक कर पाएगा इसको, नहीं कर पाएगा, वो आसानी से इसको अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसको सराउंड किसने किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ने सराउंड किया हुआ है। अब जब पॉजिटिव चार्ज इसको सराउंड करेगा तो क्या होगा, इट विल बी नॉट इजीली रिएक्ट, क्योंकि उसको यहाँ पे फास्ट स्लो स्टेप में इसको रिएक्शन करना है, यहाँ पे वो रेट डिटरमाइन स्टेप में है। अब जब वही स्टेबलाइज है और जब वही, तो क्या रिएक्शन करेगा, इसीलिए in case of the SN2 reaction the polar protic solvent decreases the SN2 reaction, वो क्या करता है, इसके वेट को डिक्रीज करता है, बट इन दैट केस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता, इसके वेट को इंक्रीज करता, बिकॉज दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज एंड दिस गेट सॉल्वेटेड, क्या हो जाएगा, इसका सॉल्वेशन हो जाता है। अरे बात समझ में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्वेंट के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, इसको मिलेगा सॉल्वेशन एनर्जी, राइट। इस केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का सॉल्वेंट, और जब वो उसको घेर लेंगे तो रिएक्शन कर पाएगा आगे, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन केस ऑफ द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट द रेट ऑफ SN2 विल बी डिक्रीजेस एंड द रेट ऑफ SN1 विल बी इंक्रीजेस, इसका रेट बढ़ेगा। हाँ, अगर आपने लिया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या लिया आपने, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे पोल्स नहीं बनते, है ना, यू कैन से अप्रोटिक सॉल्वेंट, यू कैन से लाइक CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ SN2 विल बी इंक्रीज, SN2 का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पोल नहीं है, इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, so there is no stabilization of this negative charge anion or this nucleophile, तो इसलिए it can be easily attack to the this electrophilic carbon atom and ultimately the rate of SN2 will be increased। तो जुमला क्या याद रखेंगे आप, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ लाइक मिथेनॉल वाटर, तो रेट ऑफ SN1 क्या होगा आपका, बढ़ेगा, और SN2 क्या होगा, घटेगा। और वही उल्टा हुआ, अप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो रेट ऑफ SN2 क्या होगा, बढ़ेगा, और रेट ऑफ SN1 क्या होगा, घटेगा। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो गवर्न करते थे SN1 SN2 रिएक्शन पे। आप इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, कभी कभी ऐसा होता कि प्राइमरी सबस्ट्रेट जो होते ना, प्राइमरी सबस्ट्रेट, मैंने आपको क्या बताया था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में, कि द सबस्ट्रेट इज प्राइमरी इज प्रोसीड वाया विच मैकेनिज्म, इज प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो प्राइमरी होता है, लेकिन इट फॉलोज द SN1 पाथ, दैट डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटायन। नाउ सी दिस, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में मैं फिर से एक बार आ जाता हूँ यहाँ पे। देखिए आपके पास ये कंपाउंड CH3 सॉरी नाउ सी CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिखता हूँ मैं CH2C, नाम क्या होगा इसका बच्चों, नंबर यहां से लिखा 1 2 3, हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोप 1 इन, 1 क्लोरोप्रोप 1 इन। अब इसका प्राइमरी अल्किल हाइड कैसा है, ये प्राइमरी अल्किल हाइड है, बिकॉज ये कार्बन जो है ना,
ये कार्बन एक वक्त में एक ही कार्बन से अटैच है, हालांकि वो क्या है, जैसा अलानिक क्या है, वो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, जैसा अलानिक। अब इट प्रोसीड, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये प्राइमरी है तो प्रोसीड कैसे करेगा, ये प्रोसीड करेगा कौन सा मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इट फॉलोज द SN2 मैकेनिज्म, इट फॉलोज द SN1 पाथ। वो क्या करता है, SN1 पाथ, मतलब यहाँ पे अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ये लिखेंगे इसको कि इट फॉलोज द विच पाथ, देखो ये H है, यहाँ पे 2 H है, तो 2 H यहाँ पे लिख दिया है ना, और यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड है देखिए, तो CH डबल बॉन्ड CH2 और न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे ना, तो ये है आपका लिविंग ग्रुप CH और न्यूक्लियोफाइल ने इसको यहाँ से अटैक किया, ये बन गया आपका, है ना, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से अटैक दिखाया तो, राइट। मैं इसको ओपन कर दूं तो ये ऐसा, बट इट डू नॉट प्रोसीड वाया दिस मैकेनिज्म, वो इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। वाई, बिकॉज इट फॉलोज द SN1 पाथ। क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब जब यहाँ से निकलेगा कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे निकल गया वो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्ज कैसा आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब बाद में क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव आया तो इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दिस डबल बॉन्ड एंड इट विल गेट द स्टेबलाइजेशन, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो दिस बिकम लाइक CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 H हो गया आपके पास, राइट, 2 H हो गया आपके पास, ये इसके कितने बॉन्ड है, पहले से 4 बॉन्ड है, इसके कितने बॉन्ड हो गए, इसके हो गए 3 बॉन्ड, इसके चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव, तो दिस फॉलोज द SN1 पाथ। हालांकि वो क्या है, प्राइमरी सब्सट्रेट है, लेकिन तो भी वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, SN1। सेम थिंग फॉर द बेंजीन, है ना, अगर आपने ये सब्सट्रेट लिया, कौन सी दिस इज द बेंजीन, राइट, और यहाँ ले लिया मैंने CH2Ca, कैसा है ये, बेंजाइलिक हलाइड, है ना, बेंजाइलिक हलाइड होगा। अब क्या होगा, यहाँ भी प्राइमरी है, बिकॉज ये एक वक्त में एक ही कार्बन से अटैच है, यहाँ पे 2 H है, तो इट कुड बी प्राइमरी, है ना, हालांकि वो क्या है, जैसा बेंजाइलिक, क्या है वो, बेंजाइलिक है, तो अब ये फॉलो कर सकता है, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इट फॉलोज द SN2 पाथ, लेकिन यहाँ पे वो SN2 पाथ फॉलो नहीं करता, वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, SN1 का ही पाथ फॉलो करता। तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड निकल गया तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, नाउ सी दिस, आपको मिलेगा यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव आया, एंड दिस गेट स्टेबलाइजेशन विद द बेंजीन, तो इसको मिलेगा बाद में यहाँ पे क्या, स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा इस बेंजीन रिंग से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये हो गया आपका CH2, यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये जैसा कि वैसा था, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड कम हुआ, राइट। अब क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, बाद में यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, बाद में यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव वहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इट गोज ऑन कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या होगा, प्रोसीड होगा, मतलब अल्टीमेटली इट गेट द स्टेबलाइजेशन। तो अब ऐसा नहीं है कि हर प्राइमरी सब्सट्रेट SN2 ही फॉलो करता है, आप वहां पे कंडीशन देख लेना, अगर आपका प्राइमरी सब्सट्रेट है लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन कौन सा बना, प्राइमरी ही बना, यहाँ पे भी कौन सा बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही बनेगा, लेकिन इट गेट द स्टेबलाइजेशन थ्रू द डबल बॉन्ड ऑफ द अल्कीन, इट गेट द स्टेबलाइजेशन थ्रू द बेंजीन रिंग, तो वंस द कार्बोकेटाइन इवन इट इज प्राइमरी and if it is getting a stabilization, then ultimately it follows the SN1 path. तो माइंड में बिठा लीजिए इस चीज को कि हर प्राइमरी सब्सट्रेट SN1 पाथ फॉलो नहीं करता, कंडीशन देख लेने का वक्त आई बात समझ में। तो ये था हमारा SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो हम देख रहे थे, फैक्टर भी हमने देखा उसका। अब इसके बाद के नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह हम देखेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर उसके बाद हम आगे 2-3 लेक्चर के बाद इस चैप्टर को इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।